بجلی کے چھوٹے صارفین کے لیے حکومت کا بڑا ریلیف، 200 یونٹ تک بجلی بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ بجلی ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے 50 ارب روپے سبسڈی دی جائے گی۔ جولائی تا ستمبر کے لیے ماہانہ 200 یونٹ والے بجلی صارفین کو پنجاب میں 500 یونٹ تک بجلی صارفین کو سولر پینلز دینے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بڑے فیصلے۔ سولر پروگرام روشن گھرانہ منصوبہ منظور۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کے اختیارات میں توسیع کی منظوری بھی دی گئی۔ پنجاب کے اندر اب چیف منسٹر صاحبہ نے جو ان کا سولر پروگرام ہے روشن گھرانہ، اس کو جو ہے اس کی کیبنٹ نے جو ہے وہ منظوری دی ہے۔ 90% جو ہے ابھی تک کی یہ اطلاعات ہیں کہ 90% جو ہے اس کے پیسے جو ہے وہ پنجاب حکومت دے گی۔ یہ بلینز کا پروگرام ہے۔ سولر پینل کی لاگت کا 90% حکومت، 10% صارف دے گا۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری اور رانا سکندر حیات کی پریس کانفرنس، کہا سولر پینلز 5 سال کے آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں ای ٹینڈرنگ کا نظام بھی جلد شروع کیا جائے گا۔ پنجاب میں 5 سال بعد ریوائیول ہوا ہے کہ 9 میں سے 6 بورڈز جو ہیں ان کی فرسٹ پوزیشن الحمدللہ پبلک سیکٹر کے گورنمنٹ اسکول کے بچوں نے الحمدللہ حاصل کی ہے۔ جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا، جسے کرٹیسائز کیا جاتا رہا، آج آپ یہ دیکھیں کہ اس آرفن بچے نے لاہور بورڈ ٹاپ کیا اور اس نے اپنی سپیچ میں کہا ہے آج صبح ریزلٹ اناؤنسمنٹ میں کہ میں چیف منسٹر مریم نواز شریف کو اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی ہے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اکنامک ہٹ مین نے بجٹ بنایا ہے، جس کی توثیق یا اس کو ایڈمٹ کیا شہباز شریف نے کہ ہاں جی آئی ایم ایف نے بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا چلوں، یہ فگرز یاد رکھیے گا، آپ کی بجلی کا یونٹ پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ، اب 85 یونٹ سے تجاوز کر رہا ہے، یہ 100 روپے سے اوپر جائے گا یونٹ۔ چند دنوں تک بجلی کا یونٹ 100 روپے تک پہنچ جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بجٹ کو عوام کے خلاف معاشی دہشت گردی قرار دے دیا۔ کہا کہ بجٹ کے بعد مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھنے کا بہانہ بنا کر پیٹرول مزید مہنگا کریں گے۔ آپ دیکھیں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، جس طریقے سے عام آدمی کو بجلی کے بلوں نے ہرٹ کیا ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے اور ہم اپنے اداروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کیسے پاکستان کو چلائیں گے؟ یہ ملک کیسے ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں گے اگر ہم نے ادارے تباہ کر دیے تو؟ میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے وہ فوری واپس لیا جائے۔ فرات چودھری کا بجلی بلوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ، کہا عوام کے کھڑے ہونے تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت فارم 47 پر کھڑا ہے۔ ملک میں لا قانونیت کی کیفیت، ججوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ پر وفاقی حکومت کا پہلا ایکشن۔ پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کے ایم ڈی ظفر عباس کو او ایس ٹی بنا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم۔ ابتدائی رپورٹس میں پروریٹا بلنگ میکانزم کو اوور بلنگ کا باعث قرار دیا گیا۔ ایل پی جی کے کاروبار سے وابستہ 4 ایسوسی ایشن کا ہڑتال کا اعلان۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر، ٹرانسپورٹ پلانٹ اور برآمد کنندگان کا کل ٹھوکر نیاز بیگ پر پہیا جام ہڑتال کا فیصلہ۔ ایل پی جی ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اب ایل پی جی کی ترسیل ناممکن ہو گئی ہے۔ ہڑتال کا فیصلہ اٹل، فلور ملز اور آٹے کی فروخت پر لگنے والے ود ہولڈنگ ٹیکس پر ہڑتال کا فیصلہ برقرار۔ فلور ملز ایسوسی ایشن اور آٹا ڈیلر عہدیداروں کا کہنا ہے حکومت ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں، ہڑتال ہر حال میں ہوگی۔ بجٹ کے آفٹر شاکس، موبائل فونز کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ، 4000 سے لے کر 36,000 روپے تک مہنگے۔ وفاقی بجٹ میں موبائل فونز پر 18% جی ایس ٹی کا اطلاق، ریٹیلر نے صارفین سے 18% جنرل ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ مہنگی بجلی سے ملک میں انڈسٹری بند ہو گئی، پاکستان کو مالیاتی طور پر بنجر کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی لاہور امیر معظم کی گھن گرج، کہا کہ وقت آ گیا ہے حکمرانوں کا احتساب کیا جائے، جماعت اسلامی ہی عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے۔
जमात इस्लामी का इस्लामाबाद धरने से पहले एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं एहतजाजी कैंप्स में शहरियों को धरने में शिरकत की दावत दी जाएगी। बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है, पावर टू द पीपल है, पावर टू द इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पावरफुल है। हर चीज़ हर बात अपनी वो दुनिया के सामने रख सकता है, मगर उनमें भी एक ग्रुपिंग हुई है, एक उसके अंदर सोशल सेक्टर और कैपिटलिस्ट सेक्टर चल रहा है। आपने अपने पड़ोस में हाल ही में इलेक्शन हुए तो मोदी मीडिया का नाम सुना होगा। वो मोदी मीडिया वो है जो कि उसके सपोर्टर्स जो उनके ट्रिलियनर्स बिलियनर्स दोस्त हैं उनने क्रिएट किया। वो खुद ही ऑन करते हैं उनको और अपनी बातों को और अपनी सोच को लोगों तक पहुंचा के डिसीजन उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। जिंदगी में हर तरह की आजमाइश का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया में भी अब ग्रुपिंग नजर आती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब। कहा, अमेरिका में सबसे पुरानी जमहूरियत में भी ऐसा ही माहौल नजर आता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत का गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। गैर मुल्की खुसूसन चीनी बाशिंदों का डाटा कंपाइल करने का काम शुरू कर दिया गया। चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ बेस मंगवाई जाएंगी। हालिया तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने फैसला किया है। फॉरेन अफेयर ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया का राज। कागजात की तस्दीक कराना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। मेन गेट के बाहर शहरियों की तवील कतारें, न छांव और ना ही बैठने का इंतजाम। गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। आला हुकाम से सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को छुट्टी का ऐलान। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील होगी। पंजाब भर में अमन कमेटियां मुतहरिक और मस्बत किरदार निभाएं। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक की ज़रिए सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा, महकमा दाखिला के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुहर्रमुल हराम के हवाले से लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 2390 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि अशरा मुहर्रमुल हराम में सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान। 1,74,500 से जायद उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी का तनासुब 69% रहा। 30.25% बच्चे फेल हो गए। कंट्रोलर इम्तहानात मियां जाहिद ने नताइज का ऐलान किया। सरकारी स्कूल जो हैं उनके बच्चों ने पोजीशंस ली है। सर आम तौर पे हमारे सरकारी अदारों में बड़ा रफ स्टफ आता है। ये जितने टॉप पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं इनको सर निजी अदारे 5-5 लाख 4-4 लाख दे के अपने कॉलेजेस में ले जाएंगे। हमारे सरकारी अदारों में निचले मेरिट के बच्चे आते हैं लेकिन हमारे सरकारी टीचर्स उनको उठाकर उन बच्चों के बराबर ले जाते हैं। तो हमारे सरकारी अदारों पे ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का मैट्रिक पोजीशन होल्डर्स के लिए 25 करोड़ रुपए का ऐलान। मरीम नवाज की मैट्रिक में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। कहा, मेरे बच्चों, कौम को आप पर फख्र है। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं हर मेहनती तालिब इल्म के साथ हैं। ये हमारे बच्चे हैं और इनके लिए हमें जो भी करना पड़े हमें वो करना चाहिए। एंड इंशाअल्लाह दिस गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर, हमें इन्हें स्टैनफोर्ड भी भेजना पड़ा हम इन्हें भेज के पढ़ाएंगे। हार्वर्ड भेजना पड़ा भेज के पढ़ाएंगे। IBA में पढ़ाएंगे जो इनकी रेलेवेंट फील्ड्स हैं। एंड वी विल मेक श्योर कि ये इंशाअल्लाह जितनी मेहनत इनके वालिदा ने इन पे की है उससे ज़्यादा मेहनत और जिम्मेदारी, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट, आपका मुल्क भी आपकी माँ की तरह है। मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और कमिश्नर लाहौर ने
पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। राना सिकंदर हयात का कहना है कि पोजीशन होल्डर्स को मुकम्मल स्कॉलरशिप्स देंगे। मैट्रिक के नताइज का ऐलान। दानिश हाई स्कूल के अयान काशिफ ने 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अयान काशिफ की वालिदा खुश, कहती हैं बेटे ने सर फखर से बुलंद कर दिया। इस गुर्बत में यतीम बच्चे की परवरिश के लिए बहुत मेहनत की है। डेफिनेटली मैं जो है अल्फाज में बयान नहीं कर सकती जो मैं इस टाइम फ़ील कर रही हूँ, और विदाउट हिज फादर और उसकी सारी परवरिश करना। माशाल्लाह 3 भाई हैं, ये तीनों दानिश में पढ़ रहे हैं, और उनकी एजुकेशन पे जो है वो काम करना और साथ उनकी मेहनत करना तो आसान काम नहीं था, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला की अता से और इसकी माँ बाप की दुआओं से और इसके टीचर्स की मेहनत से जो है ये हम दिन देखना नसीब हुआ है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अपनी छत अपना घर मंसूबा दिसंबर 2028 में मुकम्मल होगा। 9 अरब 88 करोड़ 96 लाख से ज़ायद लागत आएगी। मंसूबे के तहत बेघर अफराद के लिए 1 लाख घर बनेंगे। हुकूमत ने मंसूबे के लिए कंसल्टेंट की खिदमत मांगी। शादमान में सरकारी इमारत में करोड़ों रुपए की करप्शन। CNW के अफसरान की नाक़िस कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने आ गई। हुकूमत ने 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए। महकमे ने 20 करोड़ का इजरा कर दिया। SMG पर PC1 भी मौजूद नहीं। मानसून मखदूश इमारतों के लिए बड़ा खतरा। शहर में मजमूई तौर पर 487 खतरनाक इमारतें मौजूद। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड सिटी में 409 जोन्स में 87 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। मुतबादल जगह न होने पर मकीन खतरनाक इमारत में रहने पर मजबूर। पंजाब के बोर्ड बराए मनसूबाबंदी और तरक्की में मसाइल की भरमार। इमारत में एयर कंडीशनर का निज़ाम पुराना और बोसीदा हो गया। दफातर में मुलाजमीन के बैठने के लिए जगह भी कम पड़ गई। हुकाम का मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट अरसाल करने का फैसला। अवाम की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज का अहम इकदाम। दूसरे सूबों में रजिस्टर्ड गाड़ियों की पंजाब में रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी। मालिक गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट देने का पाबंद होगा। मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करेगी। बागात के शहर में बादलों और सूरज में आंख मचोली जारी रही। कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। शहर में डेंगू सर उठाने लगा। 24 घंटे में 497 मकामात से बरामद डेंगू लार्वा तलब कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स के फील्ड में दौरे। डेंगू फील्ड टीमों को हॉटस्पॉट्स की कवरेज 100% यकीनी बनाने की हिदायत। PHA का अहले लाहौर को आलमी मयार की सहरो तफरीह के मौके फराहम करने का फैसला। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने रेस कोर्स और ग्रेटर इकबाल पार्क में फन लैंड बनाने की मंजूरी दे दी। रॉयल नॉर्वेजन एम्बेसी की सेकंड सेक्रेटरी का वफ्द के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। वफ्द की एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस रियाज नज़ीर से मुलाकात हुई। शहरियों की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खबरदार होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालानों की भरमार। गुज़श्ता रोज 48,000 खिलाफ वर्जियाँ नोट की गईं। 6,209 शहरियों ने जानबूझकर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा। सिटी लाहौर का खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों को मजीद बढ़ाने पर गौर। पंजाब असम्बली में पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट यूनिट के ज़ेरे एहतमाम इंटर्नशिप प्रोग्राम। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, नौजवानों को पार्लिमानी निज़ाम देखने और सीखने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम तलबा के लिए अमली तजुर्बा फराहम करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी टीम के कोचेस की मुलाकात। खिलाड़ियों की कोचिंग के अमूर पर तबादला ख्याल किया। टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत कर दी। कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। बैटिंग, बाउलिंग और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया।